हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो इन काफका सीरीज। सो आज के वीडियो में हम काफका पार्टीशंस के बारे में अच्छे से जानेंगे। हम ये जानेंगे कि व्हाट इज काफका पार्टीशन, व्हाई वी रिक्वायर काफका पार्टीशन एंड देन डिफरेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस दैट कैन बी मेड अराउंड काफका पार्टीशंस, उनको डिस्कस करेंगे। सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will have the clear understanding of what is Kafka partitions, why we require partitions, the number of partitions versus number of consumers, कौन का impact क्या होता है in your overall architecture, and then और भी सारी चीज़ें समझेंगे रिलेटेड टू पार्टीशन। सो दिस इज़ लाइक वन सिंगल वीडियो, जहाँ पे इफ़ आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको काफका पार्टीशंस एंड टू एंड समझ में आ जाएगा। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट। सो स्टार्ट करते हैं अभी आज के वीडियो से। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में आना चाहिए कि ये पार्टीशंस क्या है, लाइक व्हाट इज दिस काफका पार्टीशन। सो पार्टीशंस क्या होते हैं? इट इज़ नथिंग बट अ लॉजिकल डिवीजन इनसाइड अ टॉपिक। सो हमने लास्ट वीडियो में टॉपिक तो समझा था। सो टॉपिक इज दैट लॉजिकल बॉक्स जिसके अंदर मैसेज प्रोड्यूस होते हैं एंड जहाँ से कंज्यूमर मैसेज कंज्यूम करता है। एंड इनसाइड टॉपिक वी हैव मल्टीपल पार्टीशंस। सो पार्टीशन इज लाइक लॉजिकल डिवीजन ऑफ अ टॉपिक, लॉजिकल डिवीजन of topic. For an example, let's say we have this Kafka topic known as food orders. Okay, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स होंगे जो मैसेजेस प्रोड्यूस करेंगे इनसाइड दिस टॉपिक, एंड कंज्यूमर्स होंगे दैट वुड रीड द मैसेज फ्रॉम द टॉपिक. So here we have consumer. Now inside this topic, so this is what this is topic. So inside this topic we have logical division. So let's say this is one division, this is second division, this is third, and let me call this at partition 1, partition 2, partition 3. So these are nothing but a logical division inside a topic जिसको हम partition बोलते हैं. And ये partition से benefit ये होता है कि so let's say this producer is producing a message, message 1, message 2, message 3. So producer can publish 3 different messages at the same time. साइमल्टेनियसली वो मैसेजेस प्रोड्यूस कर सकता है इनसाइड अ वन टॉपिक। एक सिंगल टॉपिक के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रोड्यूसर कैन पब्लिश 3 डिफरेंट मैसेज बिकॉज देर आर 3 पार्टीशन ऑफ दिस टॉपिक. सो द मेन benefit we get from partition is it helps you to improve the scalability. Scalability क्यों बढ़ गई? Because let's say if there would be only one topic with one partition, तो एक टाइम पे सिर्फ एक ही मैसेज जा पाता, एक ही मैसेज पब्लिश हो पाता. But now we have 3 partition of a topic, so there can be 3 messages that can be published in this topic at a time. So this help us in scalability. So with the help of partition, what we got scalability of the topic, and we got parallelism because 3 messages को हम एक साथ parallelly publish कर पा रहे हैं. And same goes with consumer. Consumer will also be able to consume 3 different messages at the same time. So with the help of dividing the topic into partitions, we get scalability and parallelism. Why scalability? Because let's say कि कल tomorrow if the traffic on this topic increases, ये topic पे traffic बहुत बढ़ जाए तो हम क्या करेंगे? तो ये जो topic को जितने CPU cycles allocated है वो increase करेंगे as well as number of partition increase करेंगे. So tomorrow like we can have one more here, that is partition 4, and यहाँ पे now because we have now 4 partition, तो यहाँ पे भी एक नया message produce हो सकता है and one new message can be consumed from this partition, from this new partition. So this is how the scalability would work. So that was all about what is partition and why we require partition in Kafka topic. Now let's talk about one interview question that can be asked around Kafka partition is, that is what if number of partitions are more than the consumer, number of partitions of a topic is greater than number of consumer. एक ऐसा कोई सिनेरियो है जिसमें पार्टीशन ज़्यादा है कंज्यूमर से, तो इस केस में क्या होगा? सो द आंसर इज़ वेरी सिंपल. इस केस में a single consumer would read from more than one topic. So let's say, let me again take an example of a topic जिसके अंदर partition है P1, P2, P3, P4, but let's say here in the consumer group we have only 2 consumer, consumer 1, consumer 2. Now इस सिनेरियो में क्या होगा कि consumer C1 would read from P1 as well and let's say P3 as well, and C2 will read from P2 and P4. So this is possible that a single consumer can read from multiple partition. It is an valid architecture.
सो इसका आंसर यही है कि अ कंज्यूमर कैन रीड फ्रॉम मोर देन वन पार्टीशन। ओके कूल। सो ऐसा कोई वन टू वन मैपिंग नहीं है, राइट? सो देर इज नो वन टू वन मैपिंग, ऐसा कुछ नहीं है। देर कैन बी अ कंज्यूमर विच इज रीडिंग फ्रॉम मोर देन वन पार्टीशन, दैट इज पॉसिबल इन काफका। सो ये क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ पार्टीशन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कंज्यूमर। बट व्हाट इफ उल्टा हो, लेट्स से नंबर ऑफ पार्टीशन इज लेस देन नंबर ऑफ कंज्यूमर, ऐसा भी हो सकता है, राइट? तो इस केस में क्या होगा? लेट मी टेक द सेम एग्जांपल। सो इफ आई टेक दिस सेम एग्जांपल here and explain you कि now here we have, let's say, 5 consumers, C3, C4, C5. Okay, तो इस केस में when number of partition is less than number of consumer, तो इस केस में let's say C1 is reading from P1, C2 is reading from P3, C3 is reading from P2, C5 is reading from P4. तो एक ऐसा कंज्यूमर बच जाएगा that is remaining idle. So ये होगा idle consumer. This is like waste of resource. ये कंज्यूमर आइडल बैठेगा, ये कुछ काम भी नहीं करेगा. सो दिस इज वेस्ट ऑफ रिसोर्स, वेस्ट ऑफ मेमोरी, वेस्ट ऑफ सीपीयू दैट वी हैव एलोटेड टू दिस कंज्यूमर. सो हम कभी भी ऐसा आर्किटेक्चर नहीं रखते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ पार्टीशन इज लेस देन नंबर ऑफ कंज्यूमर हो, बिकॉज ये कंज्यूमर आइडल बैठेगा. सो दैट वाज द नेक्स्ट थिंग. नाउ एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन. कैन अ पार्टीशन बी कंज्यूम्ड by two consumer in a group? सो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या ऐसा कोई सिनेरियो पॉसिबल है जहाँ पे सेम पार्टीशन इज गेटिंग रीड बाय टू डिफरेंट कंज्यूमर ऑफ अ कंज्यूमर ग्रुप. फॉर एन एग्जांपल, लेट्स से दिस इज अवर टॉपिक. इसके अंदर पार्टीशन है P1, P2, and let's say we have a consumer group. This is our consumer group. It also has C1, C2, okay, C3, and let us take as C4. So ऐसा कोई is it possible that this C1 is also reading P1 and C2 is also reading P1? Is this possible? Can a partition be consumed by two consumer of a same consumer group? The answer to this is no. ऐसा possible नहीं है. Because एक key rule है. Let me write it down. A key rule. In a consumer group, so एक कंज्यूमर ग्रुप के अंदर each partition is consumed by only one consumer. सो काफका आपको ये वाली चीज अलाउ ही नहीं करेगा. दिस इज नॉट अलाउड इन काफका बिकॉज ऑफ दिस की रूल. इन अ कंज्यूमर ग्रुप, एक कंज्यूमर ग्रुप के अंदर अ पार्टीशन कैन ओनली बी कंज्यूम बाय वन कंज्यूमर. नाउ लेट्स से if there is a scenario like this, C1 is reading P1, and now let's say there is another consumer group which has C1 again and C2. Now this C2 can read P1. This is possible. Two different consumer group can read from the same partition. That is possible. But एक कंज्यूमर ग्रुप के अंदर दो कंज्यूमर सेम पार्टीशन को रीड करें, नो, दैट इज नॉट पॉसिबल. काफका आपको ये अलाउ ही नहीं करेगा. बिकॉज इफ दिस इज अलाउड, फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज अलाउड, देन क्या होगा? डुप्लीकेशन होगा. इससे डुप्लीकेशन ऑफ मैसेज प्रोसेसिंग, and that we don't want same message to be processed two times by two different consumers. That we don't want. That's why एक consumer group के अंदर a partition is only read by one consumer. ऐसा ही होगा. That is the key rule of Kafka. But this scenario is absolutely fine कि एक consumer group read कर रहा है and second consumer group also same partitions को read करे. That is absolutely fine. Okay. नाउ एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, हाउ इज पार्टीशन सिलेक्टेड और असाइन फॉर अ पर्टिकुलर मैसेज. हाउ पार्टीशन सिलेक्शन हैपन्स. सो लेट्स से दिस इज अ टॉपिक विथ थ्री पार्टीशन, एंड जब भी कोई मैसेज आता है, मैसेज M1,
अभी ये मैसेज कौन से पार्टीशन में जाएगा, P1 में जाएगा, P2 में जाएगा, P3 में जाएगा, ये डिसाइड कैसे होता है, हाउ पार्टीशन सिलेक्शन हैपन्स. So there are two ways. One is default way, that is round robin algorithm. By default राउंड रॉबिन एल्गोरिथम अप्लाई होता है, दैट इज वो वन बाय वन ईच पार्टीशन में मैसेज जाके पब्लिश होगा. सो लेट्स से M1 है, M1 विल गो टू P1. नाउ लेट्स से M2 आया, मैसेज 2 आया, देन मैसेज 2 विल गो टू P2, फिर मैसेज 3 विल गो थ्रू P3. अगेन लेट्स से मैसेज 4 आया, लेट्स से मैसेज 4 आया, नाउ दिस मैसेज विल अगेन गो टू P1. सो ऐसा राउंड रॉबिन एल्गोरिथम अप्लाई होता है जहां वन आफ्टर द अदर ईच एंड एवरी पार्टीशन में मैसेज जाके पब्लिश होता है. सो दिस इज द डिफॉल्ट मैकेनिज्म दैट काफका यूजेस इंटरनली. ये काफका इंटरनली अपने आप से राउंड रॉबिन एल्गोरिथम ही यूज करता है टू सिलेक्ट द पार्टीशन. सो दिस इज द डिफॉल्ट मेथड. नाउ वी हैव कस्टमाइज्ड मेथड और की बेस्ड मेथड जहां पे हम पास करते हैं पार्टीशन की. वी ऑल्सो पास पार्टीशन की अलॉन्ग विद द मैसेज. तो यहाँ पे तो क्या हमने सिर्फ मैसेज ही डाला है. नाउ देयर इज अ वे वेयर वी कैन ऑल्सो पास द पार्टीशन की अलॉन्ग विद द मैसेज. सो लेट्स से मैसेज 1 मैंने पास किया विद द पार्टीशन की, लेट्स से 1. ओके, नाउ काफका इंटरनली ये की को कैसे रीड करता है, व्हाट इट डू इज इट डज द हैश ऑफ द की. लेट्स से देयर इज सम हैश फंक्शन वो की वैल्यू को हैश करता है एंड उसको मॉड्यूलर करता है नंबर ऑफ पार्टीशन से. ओके, सो इसका एग्जांपल लेते हैं. लेट मी टेक एन एग्जांपल. लेट्स से की वैल्यू इज 10. ओके, एंड उसका हैश हमने किया विथ सम हैश फंक्शन, इसका वैल्यू निकल गया 9. नाउ हियर वी हैव 3 पार्टीशन, सो हम मॉड्यूलर बाय 3 करते हैं, सो आंसर क्या आता है 0. That means it goes to P1. This is how the algorithm will work internally. Okay, now let's say hash of let's say 7 value आया 8, for some reason 8 आया and उसको मॉड्यूलो 3 किया हमने, तो इसका आंसर आता है 2. So वो जाएगा P3 में here. So this is how this hash function will work and finally हम number of partition इसलिए करते हैं so that it don't overflow. We have limited partition here, right? And we want our answer or final answer to be either 1, 2 और 3. That's why we do a module of number of partition so that we don't overflow. इसका लॉजिक सिंपल है एंड ये भी सिंपल है. तो whenever we want a particular type of message to be published in a particular partition, ऐसा कोई सिनेरियो है जैसे फॉर एन एग्जांपल इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ फूड ऑर्डरिंग एप्लीकेशन एंड मुझे ऐसा लॉजिक लिखना है कि बॉम्बे के सारे ऑर्डर्स P1 में आने चाहिए, all food orders from Bombay should go to P1, and let's say all food orders from Bangalore should go to P3, and let's say all food orders from Delhi should go to P2. ऐसा कुछ मुझे लॉजिक लिखना है, रीजन बेस्ड लॉजिक. ओके, सो मैं क्या करूँगा, जब भी बॉम्बे रीजन से कुछ ऑर्डर आया मैंने की पास की 1, जब भी बेंगलोर रीजन से ऑर्डर आया मैंने की पास की 3, एंड दिल्ली से आया ऑर्डर तो मैंने की पास की 2. So for all the orders from Bombay, I will pass the partition key as 1 and similarly for BILR and Delhi. Now जब 1 वैल्यू पास किया यहाँ पे तो उसका हैश का वैल्यू सेम ही आएगा एंड जब हम मॉड्यूलर करेंगे नंबर ऑफ पार्टीशन ये फाइनल वैल्यू सेम ही आएगी. ओके, फॉर एन एग्जांपल हैश ऑफ 1 इसके वैल्यू है लेट्स से 6 एंड उसको हमने मॉड्यूलर किया 3, ये P0 में जाएगा. हैश ऑफ लेट्स से 2 उसकी वैल्यू है 7, इसको मॉड्यूलर किया ये 1 में जाएगा एंड सिमिलरली कुछ वैल्यू आएगी हैश ऑफ 2 का. सो एवरी टाइम व्हेन अ फूड ऑर्डर फ्रॉम बॉम्बे कम्स इट विल ऑलवेज गो टू पार्टीशन 0. सो इफ वी हैव सच रिक्वायरमेंट जहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर टाइप के मैसेज को एक पर्टिकुलर पार्टीशन में ही भेजना है, इन दैट केस वी कैन यूज दिस पार्टीशनिंग की कॉन्सेप्ट. तब ये की कॉन्सेप्ट बहुत ही हेल्पफुल होगा. सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड कि ये पार्टीशन की कैसे वर्क करता है एंड हाउ इट विल डिसाइड द पार्टीशन. एंड एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो हम समझ लेते हैं कि let me again take this partition example P1, P2, P3, and let's say there are two consumer C1, C2. C1 is reading from P1 and C2 is reading from P2 and P3. ऐसा कोई सिनेरियो है एंड लेट्स से फॉर सम रीजन C2 इज डाउन, ये कंज्यूमर डाउन हो गया तो क्या होगा, पार्टीशन 2 एंड पार्टीशन 3 के मैसेज
छूट जाएंगे, रीड नहीं होंगे, नो दैट वोंट बी हैपन। सो इस केस में क्या होता है, रीस्ट्रक्चरिंग होता है एंड C1 will start reading from P2 as well as P3. So C1 will start reading from both the top partition as well of the same topic. P2 P3 को भी read करना start कर देगा. So this is an internal mechanism of Kafka जो internally ये logic लिखा है कि if one of the consumer is down, the partitions will be reassigned to the remaining consumers. ये भी होता है. And let's say एक और scenario लेते हैं जिसमें initially there were two partition P1 P2 and there was only one consumer C1, but now and C1 is reading from both P1 and P2, and let's say you increase the number of partition and there is only one consumer, C1 is already reading from P1 P2, तो ये P3 के मैसेजेस किसको जाएंगे, तो इधर भी रीस्ट्रक्चरिंग होगा, C1 will start reading messages from P3 as well. So कुछ भी चेंज होता है let's say in the number of partitions or in the number of consumers, वो Kafka internally restructure कर देता है so that no message is left idle. हर कोई so the main aim is कि हर कोई मैसेज जो पब्लिश हुआ है in any of the partition that should be processed. That is the main aim of Kafka, and Kafka handle is by doing restructuring like this. So I hope you guys understood कि partition क्या है, हमें क्यों required है partition, and we also talked about कि can a partition be consumed by two consumers in a group, and then हमने partition selection का भी algorithms देखे, and then in the end we also learned that how restructuring will happen, and Kafka does this restructuring internally. So yeah, that was all about Kafka partition. And if अभी भी आपके माइंड में कुछ भी डाउट है then do let me know in the comment section. अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then keep learning.